इकोनॉमी तो ध्वस्त हो गई। -7.3% पे हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन है। और मैं तो हमारी कल्चर का एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं भैया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य देव को हाथ जोड़ के काम करने चाहिए, ये रात के काम कभी सही नहीं हो सकते। ये 8 बजे निर्णय लेके 12 बजे जो थोपे जाते हैं, उन निर्णयों से हमारे कल्चर में भी लिखा हुआ है कि उससे फायदा नहीं होता। रात को कौन काम करते हैं हमारे सभ्यता में, हमारी कल्चर में, आप सबको पता है। बाकी जो 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 सही निर्णय होते हैं वो सूर्य भगवान को अर्घ देके करे जाते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, नोटबंदी से तालाबंदी तक का जो सफर है उसमें आपकी इकोनॉमी पूरी ध्वस्त हो गई। हम मांग करते हैं, पहली मांग, कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम तुरंत प्रभाव से कम किए जाए, नंबर 1। नंबर 2, एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस को कम करने के लिए सबसे पहले तो आप इंपोर्ट ड्यूटीज को रिव्यू कीजिए। क्योंकि आज आप बोलते हो कि अब तो पाम ऑयल इंडोनेशिया से लेते हैं, तो आप इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाते जा रहे हो? उसमें कम कीजिए ना। दूसरा, जब इस तरह जब दूध हो, नूडल्स हो, ब्रेड हो, एग हो, आप कोई भी बाथिंग सोप हो, वॉशिंग पाउडर हो, सब में जब महंगाई बढ़ रही है तो जीएसटी की रेट्स को रिव्यू कीजिए। और जीएसटी की रेट्स को इन सभी जो एसेंशियल कमोडिटीज है इसमें जीएसटी की रेट्स को कम कीजिए, ताकि अंतिम उपभोक्ताओं को फायदा मिले। अन्यथा देश का मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, देश का निम्न आय वर्गीय व्यक्ति इस गलती के लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये वो समय है जब लोगों की जेब में अतिरिक्त पैसा डालने का समय है। आप तो लोगों की जेब में जो पैसा है उसको निकालने का समय है। मैं अपनी बात संक्षिप्त में अंग्रेजी में बोलूंगा, फिर आपके सवाल जरूर लूंगा, आपका हर सवाल का उत्तर दूंगा। Diesel and petrol is continuously increasing, not gross domestic product of the country. People gave the mandate to this government to increase GDP, but unfortunately government is increasing gas, diesel and petrol prices, not gross domestic product. And if I want to summarize Modinomics in one sentence, then I will summarize: falling demand, falling GDP, rising inflation and rising unemployment is a punchline of this government. On 12th of July 2021, NSO had released the inflation data for the month of June 2021. As per that data, food inflation is at 5.58%, clothing inflation is at 6.21%, pulses inflation is at 10.01%, transportation inflation is 11.56%, fruit inflation is 11.8%, egg inflation is 19.3%, fuel and light inflation is 12.6%, and oil and fats inflation is 34%. When I say oil and fat, it means edible oil and the ghee, because fat means ghee. It is 34.78%. And the overall consumer price index for the month of June is 6.26%, which is above the RBI limit of threshold of the inflation. RBI set the target of 6%. The current inflation is at 6.26%. Inflation, even in the normal time, is unbearable, intolerable, but the present is not the normal time. Our nation is fighting with this deadly coronavirus for last 16 months. So far, more than 4,11,000 people of our country had lost their lives because of COVID-19 infection. So far, 3,09 lakh people got infected because of this deadly virus. India's middle class in last year 2020 shrunk by 3.2 crore. And 7.5 crore people were pushed below the poverty line in the year 2020. As per Center for Monitoring of Indian Economy data, 97% of Indians become poorer in year 2020. This is CMIE data. With unemployment rate at 7.9%, it is clear that we lost both lives and livelihood. जान और जहान का एक डिबेट चलाई थी माननीय प्रधानमंत्री जी, हम दोनों में ही विफल हो।
In such a situation, a widespread distress, inflation has broken the back of the middle income group and lower income group people of our society. We hold the government of India directly responsible for this high inflation. And this high inflation is there because of two reasons. First, high rates of petrol, diesel and LPG. I will give you one data to substantiate my argument. In last 7 years, Government of India had collected 25 lakh crore by imposing excise duty on petrol and diesel. And just to give you a data that what is the increase in excise duty on petrol and diesel, in April 2014, Government of India used to levy 9.48 rupees per litre of excise duty on petrol, which is currently 32.90 rupees per litre. In other words, in last 7 years, there is a percentage increase of 247% in the excise duty of petrol. In diesel, the same amount is of 794%. 794%. In April 2014, the excise duty per litre of diesel was 3.56 rupees. Today it is 31.8 rupees per litre. Above petrol and diesel, the LPG, which was 414 rupees per cylinder, is currently available at rupees 850 to rupees 915 per cylinder. In last 7 years, LPG prices were increased by more than twice. In the last 6 hikes in last 7 months, the government had increased the LPG price by rupees 240. Mind it, the increase in the price in petrol, diesel and LPG is regressive in nature. Regressive means it affects the life of middle income group and lower income group more severely than the higher income group of the society. Inflation in edible oils and other household items, just to give you one example, edible oil prices got increased by 42% in last 3 months, means March to June. Bath soap prices had increased by 20% in 3 months. Washing powder, the prices had been increased by 10%. Tea leaves by 8%. Baby food by 7%. Noodles by 20%. We have two specific demands today on behalf of the common people of our country, from the government of India. Number one, the government should immediately reduce, and not only the 10 paisa, 20 paisa, 30 paisa, substantially they should reduce the price of petrol, diesel and LPG. And second, import duties should be reviewed and reset so that the prices of essential imported goods are cheaper, and GST rate should also be reduced on these items that are mass consumed by the people of our country. Otherwise, people of our country are not going to forgive you. When the entire country is under pandemic, for last 16 months, what was the environment in our houses, we are aware of that. And in that scenario, if you are going to have a oil inflation of 34%, in that scenario, if you are going to levy the excise duty on diesel, or if you are going to increase the excise duty on diesel by more than 800%, that is unpardonable. We are not going to forgive you for this particular crime. So we demand that petrol, diesel and LPG prices should be reduced. Import duties on the essential items should be reduced. The GST on all these household essential items should be reduced drastically so that people can survive during this pandemic. We had demanded that you should give direct transfer of money in the accounts of the common people of our country. You are taking money out of their pocket. This is not, we are not going to follow. I am ready for your questions. Yes, sir. परमानेंटली जीएसटी में लाया जाए। हमने इसकी भी मांग, मैंने स्वयं ने AICC से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी मांग की। राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर बादल साहब ने, और मैंने स्वयं ने इसकी मांग करी। तो कभी डिस्कस तो करो, आप कुछ सोचो तो सही, पॉजिटिव बढ़ो तो सही, हम आपके साथ हैं। आप तो हर बार सवाल को आप डाइवर्ट करते हो। देखो, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, समस्या को डाइवर्ट करने से समस्या का हल नहीं हो सकता। आप पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, आप समस्या को डाइवर्ट कर दो। हम तो कितने महीनों से कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में लाओ,
डिबेट करो, डिस्कस करो, डेलिब्रेट करो, एक कंसेंसस बनाओ। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी काउंसिल। पर जीएसटी काउंसिल में क्या हो रहा है? आपने देखा होगा अभी जब हमने मांग करी तो जीएसटी की रेट्स घटी एम्बुलेंस पे, हमने मांग करी जब जीएसटी की रेट घटी रेमडेसिविर पर। आपको ताज्जुब होगा, हिंदुस्तान की सरकार आज से 1 महीना पहले तक सोचती थी कि एम्बुलेंस एक लग्जरी गुड है। 28% जीएसटी रेट ऑन एम्बुलेंस। जब हमने बार बार चेताया, अरे एम्बुलेंस लग्जरी गुड नहीं है, एम्बुलेंस के अभाव में लोग मर रहे हैं, जब उन्होंने उसको 28 को करा, अभी 18। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, इस पे जीएसटी ले रही है भारत की सरकार। क्या ये जायज है? रेमडेसिविर पे जीएसटी लग रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा, लोगों के पास खरीदने को पैसा नहीं है, आप उस पे जीएसटी लगा रहे हो एम्बुलेंस पे। मतलब अजीब जीएसटी का मामला है। आईफोन है ना, उसके ऊपर जीएसटी 18% और एम्बुलेंस पे था 28%। ये कौन सी एक न्यायिक प्रणाली है? तो हमने तो मांग करी है, लिख के भी दिया है, हम आपके साथ है, लाओ उसको जीएसटी काउंसिल में डिस्कशन के लिए लाओ, हम उस पर डिस्कस करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे। हम चाहते हैं किसी भी हालत में अल्टीमेट जो कंज्यूमर है, मध्यम आय वर्ग के लोग, निम्न आय वर्ग के लोग, उनको पेट्रोल डीजल में सब्सटेंशियल रिडक्शन मिले। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम उस सब के लिए तैयार हैं। उसके लिए अगर आपको लगता है हम आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहे तो हम आपको हाथ भी जोड़ेंगे। आप कृपया करके लोगों को फायदा दो, उनको रिलीफ दो। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। एक इस इशू ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੱਕੋਗੇ ਉੱਥੇ संसद में, पार्लियामेंट में हम इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, पूरी जोर शोर से उठाएंगे, हर लेवल पे उठाएंगे। हम सड़क पे भी उठाते भाई, पर जैसा मैंने बताया कि बीमारी खत्म नहीं हुई है, तीसरी वेव दस्तक फैलाए हुए खड़ी है। हम वैसा काम नहीं कर सकते कि बंगाल में जाके बोले बहुत ज्यादा भीड़ है ना, बहुत दिखाई दे रहा है ना, और उसके बाद सेकेंड वेव में क्या हुआ दिल्ली के अंदर, क्या हुआ पटना में, गंगा मैया के अंदर लाशें तैरती हुई दिखी। वॉशिंगटन पोस्ट का आंकड़ा है कि भारत सरकार ने जो फैटेलिटीज का आंकड़ा दिया वो गलत है। 42 लाख लोगों से ने कोरोना के में अपनी जान गंवाई। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने हमारे प्रधानमंत्री को उसके लिए दोषी माना कोरोना की सेकेंड वेव के। इसलिए हम ऐसा कोई काम नहीं, पर आपने सही कहा, हम पार्लियामेंट के हर लेवल पर इन्फ्लेशन की बात उठाएंगे। हम पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के प्राइस रिडक्शन की बात हर लेवल पर उठाएंगे। हम एसेंशियल कमोडिटीज के जीएसटी के रिडक्शन की बात हर मुद्दे पे उठाएंगे और गवर्नमेंट को कंपेल करेंगे कि प्राइसेस कम। सर एक इनका सुन लो। इसके डेफिसिट है वो कितना पहुंचा है, और अगर आप जो डिमांड कर रहे हैं उसके करने के बाद क्या सरकार सक्षम है? इस वक्त जब सब कुछ बंद है, एक सरकार की फिक्स कॉस्ट होती है कि जो सैलरी है या जो भी कुछ है उसको देना होता है, उसकी फिक्स कॉस्ट है। तो ऐसे में क्या वो अपनी फिक्स कॉस्ट को कैसे कैटर करें? देखिए, गवर्नमेंट के पास पैसा रेज के कई ऑप्शंस होते हैं। अगर आपदा है, आपका कलेक्शन टैक्सेस से कम है जैसा आप बोल रहे हो, और वास्तविक सच्चाई भी है, मैं इससे सहमत हूँ, असहमत नहीं हूँ, पर गवर्नमेंट कैन इश्यू बॉन्ड्स, कैन रेज फ्रॉम बोरोइंग्स, कई साधन होते हैं। मैं मतलब पैसा नया इकट्ठा करने के लिए। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोरोना तो मार्च में आया ना, उससे पहले आपने जीडीपी 4% कर दी थी, 8% पे हमने आपको दी थी, सौंपी थी, उसको आपने 4% कर दी, तो आप दोषी तो हो ना उसके। कोरोना को हर बात को आप कोरोना के पीछे छुप के नहीं भाग पाएंगे। कोरोना तो मार्च में आया ना, उससे पहले क्या पेट्रोल सस्ता मिल रहा था? मार्च 2020 से पहले पेट्रोल के दाम क्या बहुत सस्ते थे, 85 रुपए, 80-85 रुपए उस समय भी, डीजल उस समय भी 70-75 रुपए था। तो आप ये हर बार कोरोना के कारण हम बर्बाद हो गए। आप बर्बाद हुए अपनी गलत नीतियों के कारण, आप बर्बाद हुए 8 से 12 के एडवेंचरिज्म के कारण। आपने अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया, नोटबंदी करके आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर का देश से सफाया कर दिया।
बिना तैयारी के आनंद फानन में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जीएसटी को लगा के आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर दिया और फिर 4 घंटे के नोटिस पे तालाबंदी देख करके आपने क्योंकि अर्थव्यवस्था कोई ये पंखे का बटन नहीं है कि आपने स्विच ऑन किया, जब स्विच हो गई, ऑफ किया तो ऑफ हो गई। एक साइकिल होता है। आज आप कोई एमएसएमई छोटी फर्म है चंडीगढ़ के आसपास, अचानक से आप उसको बंद कर दो, वापस चालू करने में 4 महीने लग जाते हैं, और बड़ी फैक्ट्री है तो चालू करने में 8 महीने लग जाते हैं। आपने किससे पूछा था? कौन वो आपके सलाहकार थे जिनसे पूछ के आपने स्विच ऑफ कर दिया, कभी स्विच ऑन कर? अब तो बोलते हैं, जो राज्य सरकार का हमारे मित्र ने सवाल पूछा, अब तो बोलते हैं कि लॉकडाउन भी राज्य सरकार का विषय। सारे विषय राज्य सरकारों के हैं, आपका तो विषय क्या है वो तो बता दीजिए। आपका विषय क्या? 20,000 करोड़ का अपने लिए महल बनवाना ही है क्या? आपका विषय अपने लिए नया हवाई जहाज खरीदना है? आपका विषय क्या है? आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो किसानों की एमएसपी के लिए लिखित में रिपोर्ट्स देते थे। अब वो एक किसान आपको वो आपकी रिपोर्ट दिखा के बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि नहीं, ये इस तरह का यू टर्न नहीं चलेगा। जब पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ते थे तो आप कहते थे ये केंद्र सरकार की विफलता है, अब आप कहते हो राज्य सरकार। जब रुपये के दाम डॉलर के मुकाबले गिरते थे तो आप कहते थे प्रधानमंत्री की वीकनेस बता रहा है, अब भी तो प्रधानमंत्री की दिखा रहा है। रुपया बहुत जल्दी मार्गदर्शक मंडल में पहुंचने वाला है, 75 रुपये से बहुत मार्गदर्शक में जाने वाला है, वहां मिल जाएगा। जो नए 4-5 लोगों को और भेजा मार्गदर्शक में, वहां रुपया भी पहुंचने वाला है। पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में भी हो रहा है ये। मैं झारखंड से मैंने चुनाव लड़ा था, आपको मैं बताऊं, मेरे से यही पूछा, अरे झारखंड में तो कांग्रेस कहीं है ही नहीं, 2 साल से सरकार चल रही है वहां। आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस ये जो आज जो जीएसटी कम हुई ना, ये कांग्रेस ने करवाई। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपस में लड़ते हैं। एक मिनट बता, आपने जो बोला ना कांग्रेस कहाँ है, ऐसा ही सवाल पूछा गया था कि अरे महाराष्ट्र में कांग्रेस कहाँ है? सत्ता हमारी है वहाँ। ऐसा ही पूछा गया था जब 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कि कांग्रेस कहीं नहीं, तीनों राज्यों के क्या नतीजा है आपने देखा। जो तीसरे राज्य में भाजपा की सरकार कैसे बनी उसके बारे में आज चर्चा का विषय नहीं, पर आपको और मुझे दोनों को अंतरात्मा में पता है कि क्या लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक हुआ। जब लोग ऑक्सीजन के लिए मारे फिर रहे थे ना, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उनको पहुंचा रहे थे। आप किसी भी अपने आसपास वाले व्यक्ति से पूछिएगा कि जब ऑक्सीजन नहीं थी तुमने सबसे पहले किसको फोन किया था, वो कहेगा या तो मैंने यूथ कांग्रेस के वॉलंटियर को किया, या कांग्रेस के वॉलंटियर को किया, या महिला कांग्रेस के वॉलंटियर को, या सेवा दल के वॉलंटियर को। उसने कहीं किसी ने भी, कोई भी आरएसएस का आदमी वहां अपनी खाकी चड्डी में नहीं दिखा था ऑक्सीजन उठाए। ऑक्सीजन घर घर गांव गांव कांग्रेस के लोग ही पहुंचा रहे थे, तो कांग्रेस वहां थी भाई साहब। अब आपने कहा दिख नहीं रही, अरे दिखेगी कैसे? शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक की जो टीवी में डिबेट है वो तो कौन नियंत्रण कर रहा आपको भी पता है। मैं क्यों बोलूं आपको वो चीज, आपको क्यों बताऊं जो आपको स्वयं को पता है। ऑयल बॉन्ड का पर्पज ये था कि $140 प्रति बैरल कच्चा तेल पहुंच गया था, और कांग्रेस की सरकार देश के लोगों के ऊपर उसका भार नहीं डालना चाहती। उन्होंने बॉन्ड इश्यू करके पैसा लिया और उस पैसे का उपयोग किया ताकि लोगों के ऊपर उसका असर ना हो। पिछले 7 सालों में, इन लास्ट 7 years, ऑयल बॉन्ड के इंटरेस्ट, ब्याज और मूल के ऊपर 71,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया। और पिछले 7 सालों में पेट्रोल की एक्साइज पे कलेक्ट हुआ, डीजल की एक्साइज पे कलेक्ट हुआ 25 लाख करोड़। अब मैं तो आप भी गणित समझते हैं, 25 लाख करोड़ का 71,000 कितने प्रतिशत हुआ? 3% से भी कम, लगभग 2.25%। तो आप फिर, मैंने कहा ना, आप कोई विफलता है जीडीपी पे सवाल पूछे, कोरोना के पीछे छुप जाओ, पेट्रोल पे पूछे, राज्य सरकारों के पीछे छुप जाओ,
ज्यादा पूछे ऑयल बॉन्ड के पीछे छुप जाओ। अरे ऑयल बॉन्ड पे 2.5-3% ही पैसा दिया है आपने, जितनी उड़ाई की है। ज्यादा पूछे तो कह रहे हैं हम इससे जो पैसा ले रहे हैं उसके वैक्सीन लाए। अरे वैक्सीन का 35,000 करोड़ का बजट में आवंटन था, उसका क्या हुआ? तो यू कांट हाइड योर फेलियर्स ऑलवेज ऑन सम बिगर थिंग, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये ऑयल बॉन्ड का पूरा आंकड़ा है मेरे पास, 25 लाख करोड़ में से मात्र 71,000 करोड़ रुपए। और कांग्रेस ने क्यों ऑयल बॉन्ड इश्यू किए? क्योंकि उस समय तेल की कीमतें $140 हो गई, जो पिछले साल कितनी थी? $30। आज कितनी है? $75। पर तेल की कीमत उस समय भी, पेट्रोल की कीमत 75 रुपए से ऊपर नहीं जाने दी, डीजल की कीमत 55 रुपए के ऊपर नहीं जाने दी कांग्रेस की